बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं शकील, शहरोज शकील, आप ठीक हैं? हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, दूसरे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं और स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लें तो फिर हम ओके, हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास की बात करते हैं। हम इससे पहले इस कोर्स में जो है हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन का सेक्शन और उसके बाद जो है हमने जो लेयर्स हैं वो टॉप लेयर से स्टार्ट किया है, एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन लेयर के बाद हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो थोड़ा सा एक चार्ट सा बना लेते हैं। हमने एप्लीकेशन और अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। जहाँ तक हम एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो सबसे प्राइमरी जो प्रोसेसेस हैं हम उनकी बात कर रहे होते हैं। और प्रोसेसेस में जो सबसे जो आर्किटेक्चर या जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। So in this client and server technology, we have client process and we have a server process. So these two processes are running on usually, generally on a different nodes in a computer, uh, in a computer network. So the process want to communicate with each other. So to communicate with these processes which are running on the application layer, there is a facility जिसको हम कहते हैं कि sockets. So these sockets are primarily exist as a door between application and transport layer. And there are many such primarily sockets which can be created and maintained uh, depending upon the choice of protocol at the transport layer. तो जो भी प्रोसेसेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एप्लीकेशन लेयर पे, maybe it's a client process or a server process. So these process primarily communicate with the other node processes through these sockets. अगर मैं इनको साइड में लिखूँ कि these are the sockets. हम एक छोटा सा रिव्यू कर रहे हैं. So these are the sockets which are being used by those processes, and these processes also specify which protocol they want to use at the transport. So there is a choice of two protocols. One is called UD, User Datagram Protocol, and another is called the TCP, Transmission Control Protocol. So the concept of connection oriented and connectionless service exists.
connection oriented communication exist, and similarly there are different application types जो कि primarily generally they are using the UDP or TCP. There are also some specific applications which able are programmed in a way to use both protocols. Okay. Also, depending upon the choice of the protocol, there is a primarily characteristics और the transport जो सर्विस है जिसमें कि हमारे पास फ्लो कंट्रोल है, congestion control है, and similarly some other important features of retransmission and recovery type of things. So there are a lot of things which are happening in the transport layer. So one important notion which is used at the transport layer is the state chart or state machine to understand the underlying working of the protocol. State machine कह लें या finite state machine कह लें. So a number of approaches, a number of ways how the state machine can be used, and also there is another graphical view जो कि time line कहलाता है, in which time is flow from top to bottom and different communication is being mentioned. और उसमें डिफरेंट जो चीज़ें जो है वो मेंशन किए जाते हैं. इसमें कुछ चीज़ें जो है वो टाइमर फॉर एग्जांपल एक टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन द केस ऑफ TCP there is also acknowledgements. Acknowledgements can be positive acknowledgement or negative acknowledgements. Then there is also a segmentation और हम इसको fragments भी कह सकते हैं. So these are some of the things which are primarily discussed on the part of this transport layer. But there is more because the transport layer has to rely on the next layer, which is primarily the network layer. So when we talk about the network layer, then the network layer is primarily a layer which is unreliable. So this is IP protocol is the main stream protocol here, and this is primarily an unreliable kind of. Why it is unreliable? Because the network devices, they can come and go on the network and then cause network to reconverge again and again. So whenever a new device is added in the network, and then the network has to take some time to converge in the form जिसमें जो different जो tables हैं जो कि नेटवर्क लेवल के ऊपर मेंटेन किए जाते हैं, जिनको हम फॉरवर्डिंग टेबल कह सकते हैं. थोड़ा सा यहाँ डिस्टिंक्शन चाहिए होगी. ओके, तो इसको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन कर देते हैं. ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्राइमरी ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए है. तो इस तरीके से जो है वो
और यहाँ पे हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं. So whenever a new device is added in the network, it causes the network to run the protocols for convergence. So this convergence needs some time, and the forwarding tables, जिनको हम routing table भी आमतौर पे कहते हैं, तो forwarding tables are rebuilt, और you समझे कि they were again primarily updated with the new device information, and it elapsed some time. This is for a local setup, जिसमें primarily जैसे किसी hospital का या university का setup है, then it takes some less time, let's say 15 minutes or less to primarily converge. लेकिन जब हम internet की बात करेंगे, there are many devices on the internet, or whenever there is a change, especially on the edge of a network, then this time primarily elapse added. ये add होता चला जाएगा, and then it will a situation in which the network will primarily to nearly an optimal state, but it never reaches to the optimal. ये optimal state कभी भी achieve नहीं कर पाएगा, but it will struggle and keep on struggling to achieve an optimal state. अगर हम थोड़ी देर के लिए ये assume करें कि 1 महीने से कोई change नहीं आई है कंप्यूटर नेटवर्क में, पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी, तो we can say it is near an optimal state, but it will never happen, क्योंकि हमें पता है कि हम जब भी वाईफाई अपना ऑन करेंगे, there will be some change on the network. जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, मुख्तलिफ डेटाबेसेस जो स्टैटिक या डायनामिक नेचर के होंगे वो अपडेट होंगे. स्टैटिक डेटाबेस कम ही अपडेट होते हैं, लेकिन यूजुअली जो डेटाबेस डायनामिक नेचर के हैं, जैसे डायनामिक डीएनएस है, एंड सिमिलरली द कैशेस एट डिफरेंट सिस्टम्स, जो कि डिवाइसेस भी हो सकती हैं, दे अपडेटेड. सो नेटवर्क इज एक एस्पेक्ट मैंने आपको बताया है, ओनली वन पर्सपेक्टिव in which the network is considered to be unreliable. So this reliability has to be added through the transport layer and the application processes. So the processes are responsible, and similarly on the transport layer, these standards are the protocols. They have to provide some sort of reliability. So the reliability feature should be here to some extent, and it should be here to a full extent with a greater scope, because the application is under the control of a programmer, and the programmer can build some amazing code to maintain this reliability and govern this reliability through the application. So application layer should be having a reliability which is more say control on the reliability, and then the reliability is practically implemented at the transport layer. So this is what is most of the things we already know, but just a recap and refresh midterm से पहले जहाँ तक हम पहुँचे थे. Now, before starting towards the today's lecture, I would like students, if they have any question. जी स्टूडेंट्स, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, you can ask now or you can type your question. क्योंकि तमाम स्टूडेंट मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि अटेंडेंस हम लगा लें, ताकि जो है वो एक छोटी सी चीज़ रह गई थी. एक हमारे स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था वॉइस ओवर आईपी के बारे में. सो फॉर्चुनेटली ऑन सर्चिंग सम डॉक्यूमेंट्स,
I found a simple, typical solution or answer to that. That the UDP, primarily voice over IP, is a typical application under UDP. And similarly, live streaming, जो कि ये TV broadcast है primarily. So this is also using the UDP. But amazingly, there is another service which is being used by the streaming applications is the FTP. So FTP is using the TCP, and there is also another form of FTP, TFTP, trivial FTP. So it using the UDP. So the original FTP uses typically TCP, but there is a variant of FTP which are also using the as well. तो ये चीज़ जो थी थोड़ी सी मैं इस सिलसिले में आपको बताना चाह रहा हूँ. Now we are moving towards the CMS for attendance. So all of the students are present. Shakil is there, Saad is there, uh, Munib is there, Hanif is there. Hanif is not present as usual. Hanif को बोलना पड़ेगा कि he should be in the इसके अलावा एक स्टूडेंट जो है वो हमारे पास जो है वो दूसरे सेशन से हैं. उनकी जो अटेंडेंस है वो मैं देख रहा था कि वो हमारे पास इस जगह पे आ रही है. शिराज अब्बास हैं हमारे साथ. हाँ, शिराज हैं हमारे साथ. जी जी, हम आपको देख लिया है. दिखा रहे हैं हम प्रेजेंट. चले, थैंक यू वेरी मच. उम्मीद है कि हमें यहाँ पे दोबारा जो है वो आने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी. Anyhow, we are going back and अब हम अपने जो रेगुलर सेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं. If there is any question, you can ask me. Last time हमने इस किताब में, ये एक अच्छी किताब है, इसका जो है वो नया वर्जन भी आ चुका है. हम इसका जो इससे पहले वाला वर्जन है उसकी स्लाइड्स देख रहे हैं. इस नए वर्जन में जो है वो कुछ जो टेक्स्ट रीडेबिलिटी थोड़ी बेहतर है as compared to the older one. So we are now moving towards the section 3.5. So in section 3.5, we have to primarily go through the connection oriented transport, that means TCP. So we quickly go to the 3.5 और वहाँ से फिर हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे. कुछ चीज़ें आपके लिए मैंने इसमें छोड़ी हैं ताकि आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप ज़रूर इसको एक दफ़ा देखें. सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स 3.5. बहुत सारी स्लाइड्स हैं इसमें. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं. नो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी. थोड़ा सा टीसीपी के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ताकि
TCP के बारे में जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं, तो फिर हम जो है वो इन तमाम टॉपिक्स को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, TCP के बारे में जो सबसे पहली चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जब हम TCP की बात करेंगे तो थोड़ी सी ये टाइमलाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। इस टाइमलाइन के अंदर जो है वो टाइम फ्लो करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो एक तरफ जो है वो नोड 1 है, लेट्स से नोड 1, और दूसरी तरफ जो है वो मेरे पास नोड 2 है। और ये हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास नोड 1 जो है ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो। So whenever node 1 wants to connect to node 2 and want to use the TCP, then you समझे कि node 1 जो है it's a client process and node 2 is a server process. So then node 1 initiate जो इसका port है and then it connect to the node 2. Then it sends an acknowledgement of that request. Okay, I acknowledge that you have requested. Now I have prepared a socket for you or a connection for you. You can now establish the connection. Okay. Then there is the established connection. So as you can see, there are 3 communications as compared to जो हमने पहले बात की थी कि there are 2 communications round trip time. So this is called a 3-way handshake for TCP, in which whenever it receives a request, then it acknowledges, it receives a request, then it acknowledges that this request, I have received a request, then it finally establishes the connection. So this is the process after which a connection is established. ये हम चीज़ जानते हैं, ये अगर जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक जो है ये अंडर ग्रेड में पढ़ा हुआ हो. So connection is now established and then it is used for data transmission, and after the transmission the connection is then disconnected. So this is the one part. The second part is the segment. Whenever a message is received from the upper layer, it is then broken down. उसको फिर जो है वो छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है. एंड दीज सेगमेंट्स या यूँ समझिए ये जो टुकड़े हैं दे आर कॉल्ड द सेगमेंट्स. और इन सेगमेंट्स को जो है वो नेटवर्क के थ्रू जो है वो दूसरे जो रिसीवर है उस तक पहुंचाया जाता है. और रिसीवर के ऊपर ये सेगमेंट्स जो है ये दोबारा मैसेज का फॉर्मेट लेते हैं. एक ही मैसेज को क्यों नहीं भेजा जाता? अगर हम एक ही मैसेज को अगर हम भेजें, लेट्स से जो है वो 5 मेगाबाइट की फाइल है, अगर हम वो नेटवर्क पे डाल देंगे, देन नेटवर्क देयर आर हायर चांसेस ऑफ नेटवर्क कंजेशन, क्योंकि बहुत सारी नोड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होंगी. सो देयर इज a packet size which is fixed in some networks, and a range is specified in some networks जो कि allow किया जाता है between one router to another router. ठीक है, थोड़ा सा चूंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में जो इसके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो नेटवर्क लेयर है, तो उसकी भी थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, तो उसको थोड़ा सा हम समझते हैं. Okay, so we have one router and we have another router, and between these routers there is a link, and this link is specified, let's say a length of
1 k bits और 1000 बिट्स। अगर मैं इसको 1000 में लिख दूं तो 1000 bits. So it is specified that if there is a communication from this router to this router, then any packet can have a size of 1000 बिट्स। यूजुअली ये जो बिट्स हैं ये डेटा का साइज बता रही होती हैं। जो हेडर्स और जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है उसको हम प्राइमरली जो है वो एडिशनल बिट्स की सूरत में काउंट करते हैं। तो आप इस वक्त ये ज़हन में रखते हैं दिस इज द डेटा प्राइमरली या पेलोड विच इज़ गिवन बाय द जो ऊपर से आ रहा है। मैसेज को ब्रेक किया गया है और ब्रेक करने के बाद जो है वो 1000 बिट्स अलाउ की गई। नो, मैसेज कैन वेरी इन डिफरेंट साइजेस। मैसेज का साइज कुछ भी हो सकता है। आगे यूजुअली इट इज ग्रेटर देन 1000 बिट्स। देन द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू ब्रेक डाउन एंड व्हेनेवर इट इज सेगमेंट, देन एक मैसेज को सेगमेंट किया जाएगा। लेट्स से देयर इज वन मैसेज एंड इट इज देन सेगमेंटेड इनटू 20 सेगमेंट्स। तो जब इस मैसेज को 20 सेगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो हर सेगमेंट को एक नंबर दिया जाएगा। सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3। इसी तरीके से मैसेज के अंदर जो उसका स्टार्टिंग लोकेशन होगा वो स्पेसिफाई किया जाएगा कि वो प्राइमरीली किस जगह से वो शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से जब ये 20 सेगमेंट्स जो हैं ये एक एक करके यहाँ से पास होंगे, वन सेगमेंट एट ए टाइम, और ये रीच करेंगे जो सेकंड नोड है, तो वहां पे जो 20 सेगमेंट्स हैं ये पहले रीअसेंबल होंगे और रीअसेंबल होने के बाद ये फिर एक मैसेज की शेप लेंगे। स्ट्रक्चर जो है ये इम्प्लीमेंट होगा टीसीपी के अंदर और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस तरीके से होगी कि द मैसेज विल बी ब्रोकन डाउन into multiple segments and the location of the start of the segment is specified। तो ये कहाँ से ये primarily start हो रहा है और इसका क्या नंबर है इस कम्युनिकेशन के अंदर, तो ये चीज़ हम इसके अंदर देखें। Then there is a reliable data transfer। Reliable data transfer comes in a number of different formats जिसमें इसकी implementation की जाती है। यूजुअली जो है वो एक्नॉलेजमेंट और जो है वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फॉर्मेट में की जाती है और इसमें जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं और जो स्कीम्स यूज़ की जाती हैं वो जैसे जैसे आएंगे हम उनको देखेंगे। फ्लो कंट्रोल के बारे में अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि फ्लो कंट्रोल इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू रिसीवर। देखिए सेंडर जो है वो तो डेटा को भेज रहा है, सेंडर कीप सेंडिंग द डेटा, बट इट इज अप टू द रिसीवर के रिसीवर की कैपेबिलिटी क्या है, तो वो कितना डेटा जो है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म। वन इज कॉल्ड अवेलेबल बिट रेट। सो अवेलेबल बिट रेट इज देन स्पेसिफाइड बाय द रिसीवर जो कि वो बताएगा सेंडर को। छोटी सी एक एग्जांपल ले लें। कॉमन एग्जांपल जो है वो प्रिंटर है। प्रिंटर कैन प्रिंट फ्यू वर्ड्स और फ्यू पेजेस पर मिनट, लेकिन जो कंप्यूटर है इट कैन सेंड मैनी ह्यूज डेटा टू द प्रिंटर और प्रिंटर का जो मेमोरी है उसको फुल करने की उसके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है। सो देन द प्रिंटर प्राइमरली जो ओल्ड प्रिंटर्स है, क्योंकि पुराने प्रिंटर्स जो हैं उनके अंदर मेमोरी इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो नए प्रिंटर है दे हैव द ह्यूज साइज ऑफ द मेमोरी के जो है वो कंप्यूटर कैन सेंड द डेटा एंड देन द प्रिंटर कैन सेव दैट डेटा इन देयर मेमोरी। Nowadays memory is very cheap, but previously sometimes back memory is not that cheap, and initially
The flow control mechanism, their mechanism is implemented through the receiver communication to the sender. रिसीवर बताएगा कि वो जो है कितना डेटा जो है वो या उसका बफर जो है वो कितना अवेलेबल है डेटा को रखने के लिए। कनेक्शन मैनेजमेंट की हमने रेडी कर ली है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्लाइड्स। अब स्लाइड्स की तरफ हम चले जाएंगे। सो द ओवरव्यू ऑफ टीसीपी। अगर कनेक्शन कंप्लीट हो जाए तो 10 मिनट का वेट कीजिएगा, तो 10 मिनट के बाद फिर जो है वो हम दोबारा से एक और सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। So request for comments. There are multiple RFCs which specifies the TCP transmission control protocol structure, so that anyone, a programmer or a company, organization can implement this protocol and can market the product. तो प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ स्टैंडर्ड कंप्लायंस होगा उनका। इसकी एक खास वर्ड है यूज करते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी। सो TCP is a point-to-point protocol and we can say one sender and one receiver, लेकिन हमारे बैकग्राउंड में होना चाहिए प्रोसेस, ओके, क्योंकि हम जो है वो थोड़ा सा एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें। सो प्रोसेसेस वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। वन प्रोसेस इज named as a sender and another process is named as a receiver, and reliable in order byte stream. So there are numbers in the stream जो कि बताएंगे कि किस तरीके से जो सीक्वेंस में जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं। सो there are no message boundaries because the messages are primarily can be of any size. So pipeline, pipe TCP congestion and flow control set the window size. पाइपलाइन जो है वो यहाँ एक से ज़्यादा मायनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन एक इसका सिंपल मीनिंग जो है वो आप ये समझ लीजिए कि there may be multiple connections between sender and a receiver. ठीक है, there may be multiple. So full duplex data, there is a bi-directional data flow in same connection, and there is also a maximum segment size, जो हमने थोड़ी देर पहले जो है वो बात की थी कि there is a size which is set between any two nodes inside the network, and the nature is connection oriented, so it requires a handshake, exchange of the control messages which initiate the receiver state before the data exchange. So state जब भी आ जाएगा, ये आप ज़हन में याद रखिएगा कि state it primarily refers to the memory, some information which is kept there, कुछ चीज़ जो है ना वो वहाँ पे रखी हुई मेमोरी हो, usually refers to the memory. Then there is a flow control, so sender will not overwhelm the receiver. Sender जो है ना वो इतने पैकेट नहीं भेजेगा कि receiver उसको हजम ना कर सके. Receiver will tell the sender what is going on. This is a structure जो कि हम जब पैकेट स्निफर कोई भी यूज कर रहे होंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको जो रिपोर्ट दी थी उसमें वाईशार्क के नाम से एक पैकेट स्निफर हमने यूज किया था, तो उसमें हमें ये फील्ड जो है डिफरेंट टीसीपी स्ट्रक्चर के ये नजर आएंगे। कुछ जो है वो तो बहुत कॉमन है, जैसे सोर्स पोर्ट नंबर एंड द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, एंड सिमिलरली द सीक्वेंस नंबर एंड द एक्नॉलेजमेंट नंबर। सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर की हमने बात नहीं की थी, लेकिन जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो उसमें जो है वो सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो भी मौजूद होगा। आमतौर पे जो सीक्वेंस नंबर है ये एक रैंडम नंबर जनरेटर जो है उससे जनरेट किया जाता है, और उसके बाद उसमें फिर एक ऐड आगे कर करके एक ऐड करके उसको फिर कंटिन्यू किया जाता है। लेट्स से अगर ये 100 से स्टार्ट हुआ है तो 100 के बाद 101, 102, और एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो सीक्वेंस नंबर के अगेंस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये आगे आएगा भी
कि अगर एक नोड ने दूसरी नोड को एक कम्युनिकेशन में या कंट्रोल में जो है वो जो है सीक्वेंस 100 भेजा है, तो जब ये दूसरी नोड जो है ये उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगी तो वो एक्नॉलेजमेंट में 100 लिखेगी कि ये आपका जो सीक्वेंस आपने 100 सीक्वेंस जो है वो उस पर जो मैंने कम्युनिकेशन रिसीव की है ये उसका एक्नॉलेजमेंट है। और इसी तरीके से अगर जो है ये जो कम्युनिकेशन आई है इसका भी कोई सीक्वेंस नंबर है, लेट्स से हम अज्यूम करते कि कम्युनिकेशन आई है इसका सीक्वेंस नंबर जो है वो 3, 4 और 5 है, तो अब जो कम्युनिकेशन होगी या अब जो सिग्नल यहाँ से जाएगा उसके अंदर जो एक्नॉलेजमेंट होगी वो इस 3, 4, 5 सीक्वेंस की होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेशन के लिए एग्रीमेंट करेंगी तो वो इस कम्युनिकेशन के जो प्राइमरीली आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सीक्वेंस नंबर पे और उस सीक्वेंस के अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर पे एग्री करेंगे। तो ये चीज़ें हम पहले से जानते हैं, लेकिन इसको हम जब थोड़ा सा रिपीट करेंगे हमें थोड़ा और अच्छा ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। Then there is a head length. There is some field which are not used, some flags for different purposes. यहाँ लिखा हुआ है urgent data है, acknowledgement है, push है, restart, sync and finish primarily related with the connection. Then there is a receive window. The bytes receiver willing to accept. इसके थ्रू कंट्रोल प्राइमरली जो है वो फ्लो कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन है। चेकसम हम जानते हैं कि एरर अगर कोई आ जाए तो यूजुअली चेकसम हेडर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन कुछ फील्ड्स जो और इसमें ऑप्शनल डाल के जो डेटा लेवल पे चेकसम को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन चेकसम की यूजुअल इम्प्लीमेंटेशन हेडर लेवल पे होती है ताकि हेडर लेवल से ही जो है वो इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए और डेटा को जो है वो ना एड्रेस किया जाए इस कॉन्टेक्स्ट में। So there are schemes which primarily work on the header only for forwarding the packet, and there are schemes which primarily go through the whole data and check the if there is any error or not. Otherwise, it is the responsibility of the upper layer to see if there is any error in the data part. ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा हमने देखना है और इन चीज़ों को थोड़ा सा हमने जानना है। Then there is a TCP sequence number and the acknowledgements. ये हम थोड़ा आपको इससे पहले हमने बता दिया है, लेकिन ये यहाँ थोड़ा मज़ीद डिटेल में अब आएगा। So the sequence numbers, the byte string number of the first byte in the segment's data. So sequence number is usually referred to the number of the first byte in the segment's data. So there are also the acknowledgements, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज और चीज भी बताई है। Usually the good mechanisms when they start the sequence number, they usually use a random number generator to initially establish one sequence number जहाँ से वो start करते हैं। Then they add 1, 1 and 1 to the sequence numbers and so on. The acknowledgements, the sequence of the next byte expected from the other side, the accumulated acknowledgement. And the question is how a receiver handles out of order segments. So the answer is TCP specification does not say, and it is up to the implementation के implementer जो कोड लिख रहा है कि वो कैसे इनको out of order segment जो है उनको primarily assemble करेगा। ठीक है, bare implementation में इसका कोई concept नहीं है। It is assumed कि जो भी पैकेट आएगा, चूंकि connection established है, path known है, तो every packet will come on order.
ओके, इसमें विंडो साइज का भी जिक्र होगा। कनेक्ट हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाए तो 10 मिनट के बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। हम ये विंडो साइज का पोर्शन जो है ये उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह। इसको जो है वो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। अभी हम इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं।